नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में फिर से रिवाइज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोसले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। किस आधार पर अरेंज किया गया हम जानते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया था। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, etc. You can see elements are arranged in the order of increasing atomic number and in two ways. Some from top to bottom. When we read, this arrangement of element is known as groups. From left to right, when we read the periodic table, this arrangement of element is known as periods. So this periodic table was divided into 7 periods, you can see, and 18 groups here from 1 to 18. Top to bottom columns are known as groups. Left to right rows are known as periods. So elements were arranged in periods and groups. What was the main theme? कि when elements are arranged according to atomic number, their properties are repeated at regular intervals. The elements which are in the same group, they bear same properties. Same group, same properties. When we move across the period, the properties tend to change uniformly or non-uniformly, depend upon the example. When we move from left to right, like this. Now this periodic table is divided into 4 different blocks. First 2 groups, group number 1 and group number 2. These 2 groups are known as S block elements because in these 2 groups, in these elements, electron enters into S orbital. Last electron enters into S orbital. That is why they are called as S block elements. Next, these 6 groups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These 6 groups are known as P block elements. P block means last electron in all these elements enters into P orbital. That is why they are called as P block elements. They are named according to the members. For example, group number 18 have fully filled last shell. They are called as noble gases. Group number 17 are salt forming substances. They are called as halogens. Group number 16 are known as chalcogens because they forms the ore. Group number 15 is known as nicogens because they are suffocating. Their oxides causes pollution. Group number 14 carbon family. Group number 13 boron family. Next, these middle elements represented by yellow color in this periodic table, from group number 3 to group number 12, they are known as D block elements. D block contains 5 orbitals. D orbitals are 5 in number. That is why one orbital has 2 electrons, so we can have 10 electrons, 10 elements in D block. D block elements are also known by the name transition elements. What do you mean by transition? Because when we move from these elements from left to right, they represent a change. When we move from this left to right, the properties of the elements keeps on changing from moving through this series. That is why they are called as transition elements, representing a change in the properties. For example, metallic character. Left में जितने भी elements हैं, they are strongly metallic. When we move from left to right through these elements to the right, they are non-metallic. The metallic character keeps on decreasing, and in the last, non-metallic elements are there. They are divided into 4 series. This is this 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. Next, 4th types of elements, F block elements. They are also known by the name inner transition elements because they have been picked up from the transition series. Transition series के बीच में से ही नहीं उठाया गया है, अलग से रखा गया है because in these elements F orbital starts to fill. F orbital में इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर करता है,
ये लैंथेनम को फॉलो करते हैं, सीरियम इनका फर्स्ट मेंबर होता है। एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, थोरियम इनका फर्स्ट मेंबर होता है। जो सीरीज़ लैंथेनम को फॉलो करती है उसे लैंथेनाइड बोलते हैं, और जो सीरीज़ एक्टिनियम को फॉलो करती है उसे एक्टिनाइड्स बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। टोटल 14 है ये, यहाँ से काउंटिंग करनी है, यहाँ से नहीं करनी। ये इसको फॉलो कर रहे हैं। थोरियम से स्टार्ट होते हैं एक्टिनाइड्स, थोरियम से लेकर लास्ट में चलिए लॉरेंसियम तक, ऐसे ही सीरियम से लेकर लास्ट में चलिए ल्यूटिटियम तक। दीज आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा पेरियोडिक टेबल का है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है, कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है, डी का है या एफ का है। उसको निकाल कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से है, कौन से एलिमेंट का पीरियड नंबर 1 है, 2 है, किसका है, हम पीरियड नंबर निकाल सकते हैं, कैसे ब्लॉक नंबर निकाल सकते हैं, कैसे हम उसका ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द पीरियड नंबर, 7 पीरियड्स, 7 से बड़ा पीरियड नंबर नहीं होता। हाउ टू कैलकुलेट द ग्रुप नंबर 1 to 18 एंड हाउ टू कैलकुलेट द ब्लॉक S, P, D and F. Let us discuss in the next part of the video. Let us see prediction of period, block and group number of elements. पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है n से। n की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। हाईएस्ट वैल्यू जो होती है कॉन्फ़िगरेशन में वो n की होती है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इन द कॉन्फ़िगरेशन, वही पीरियड नंबर होता है। बहुत आसान है। लेट अस चेक सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. What is the highest digit in the configuration? 3, so period number 3. Calcium 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई, 4 है, इसीलिए इसका पीरियड नंबर भी क्या है, 4 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखिए, जो कॉन्फ़िगरेशन में n की वैल्यू सबसे बड़ी है, n जो आगे नंबर लिखा होता है सब शेल के, दे 3, 4, 2, 1, ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही पीरियड नंबर होता है। नेक्स्ट ब्लॉक नंबर। ब्लॉक 4 हो सकते हैं, मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है वही उसका ब्लॉक नंबर होता है। लेट अस चेक, S, P, D, F हो सकते हैं बस, इससे अलग कोई आंसर नहीं होता। ऑर्बिटल विच रिसीव्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल लेट अस चेक नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3। हम देख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, तो इसका ब्लॉक नंबर क्या है भाई, p है। नाइट्रोजन इज ए p ब्लॉक एलिमेंट। जिंक 30 एटॉमिक नंबर है इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10। 3d 10 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, दैट इज वाई जिंक इज ए d ब्लॉक एलिमेंट। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेट अस चेक ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 18 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। एस ब्लॉक, इससे पहले हमें ब्लॉक निकालना पड़ेगा। अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो हम उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे। अब एस ब्लॉक में चेक करिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वही उसका ग्रुप नंबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। लास्ट शेल मतलब लास्ट शेल, सबसे बड़ा नंबर थर्ड शेल इज़ द लास्ट शेल। थर्ड शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है s, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम के लास्ट शेल है थर्ड, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस लास्ट शेल में, तो मैग्नीशियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है। पहले हमें ब्लॉक पता होना चाहिए, ब्लॉक से ही हम ग्रुप नंबर बता सकते हैं। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके अंदर ग्रुप नंबर होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ही ग्रुप नंबर हो सकते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। हीलियम एक एक्सेप्शन होता है। पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालिए और उसमें 10 जोड़ दीजिए बस। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4। अब इसमें लास्ट शेल देखिए सेकंड है, मगर लास्ट शेल में 2 ऑर्बिटल भरे जा रहे हैं, s भी है और p भी है। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4।
तो 2 + 4 कितने हो गए, 6 हो गए, और उसमें हम 10 जोड़ देंगे तो कौन सा ग्रुप आ गया ऑक्सीजन का, 16th ग्रुप आ गया। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 16th ग्रुप। आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर से देखिए, थर्ड शेल इज द लास्ट शेल, बट थर्ड शेल कंटेन्स 2 ऑर्बिटल्स s and p, 3s and 3p। 3s contains 2 valence, 3p contains 6 valence। 2 + 6 8, 8 + 10 18th group। Argon belongs to 18th group of the periodic table। Next, D block elements। Group number is equal to number of electrons in n-1d subshell plus valence electron। हमें इसके अंदर n-1d सबशेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है, n की वैल्यू चेक करनी है पहले। क्रोमियम का एग्जांपल लिखा है मैंने 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। n की वैल्यू चेक करिए, हाईएस्ट नंबर इन द कॉन्फ़िगरेशन n होता है, n = 4। आप चेक कर सकते हैं, हाईएस्ट नंबर 4 है तो n की वैल्यू भी 4 होगी इसके अंदर। n-1d + ns, n-1 4, 4 - 1 3d हो गया, प्लस ns 4s हो गया। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो 1 + 5, क्रोमियम कौन से ग्रुप का मेंबर हो जाएगा, 6th ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। n-1d + ns इलेक्ट्रॉन्स, ns। कॉपर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। इसमें भी देखिए n 4, n-1d 3d, n-1d + ns 3d 10 + 4s इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 4 है, हमने फर्स्ट में n-1 लिखना है, 4 - 1 करना है, 3d करना है। 4d नहीं है इसके अंदर, 3d है। 10 + 1 11th ग्रुप। कॉपर बिलोंग्स टू 11th ग्रुप ऑफ द पेरियोडिक टेबल। दैट इज हाउ we calculate period number, block number and group number for different elements. Let us check with example. Numericals. First, predict the position of the element in the periodic table with configuration। हमें एक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, उससे हमें उसकी पोजीशन बतानी है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, n-1d1 ns2, n की वैल्यू है 4, आप पुट करके देख लीजिए बस। n-1 4 - 1d1 4s2, 4 - 1 कितना हो गया भाई, 3d, 3d 1 है और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है। 3d 1 4s2 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, 3d से पहले देखिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। 3d से पहले 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 3d ऑर्बिटल 21वें नंबर पे आता है। आर्गन 3d 1 4s2, आर्गन 3d 1 4s2 मीन्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 18 + 3 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 21 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, स्कैंडियम के अंदर होते हैं। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1। वी कैन राइट इट इज़ ए मेंबर ऑफ डी ब्लॉक। 1 + 2 3 थर्ड ग्रुप, पीरियड नंबर इज़ 4। हाईएस्ट नंबर क्या है कॉन्फ़िगरेशन में, 4 है, तो इसका पीरियड नंबर क्या होगा, 4 होगा। इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, डी में एंटर कर रहा है, तो इसका ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक होगा। n-1d 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और 4s में कितने हैं, 2, तो 1 + 2 थर्ड ग्रुप हो जाएगा इसका। नेक्स्ट लेट अस चेक अनदर एग्जांपल। एलिमेंट्स a b c d e हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन a 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आपके पास 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सबकी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। हमें क्या पहचान करनी है, क्या कैलकुलेट करना है, विच ऑफ देम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप को कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है, पहले में चेक करिए। वैलेंस शेल कौन सी है, वैलेंस शेल इज सेकंड। सेकंड में 2 ऑर्बिटल हैं, s और p, मीन्स ये p ब्लॉक का मेंबर है। अब इसमें ग्रुप नंबर कैसे पता लगेगा, ग्रुप नंबर ही तो निकालना है हमने। 2 + 1 3, 3 में 10 जोड़ दीजिए, p ब्लॉक में हमेशा 10 जोड़ते हैं, 13th ग्रुप आ गया इसका। नेक्स्ट में चेक करिए, इसमें लास्ट शेल है थर्ड, पीरियड नंबर 3 है, मगर ब्लॉक नंबर क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर कर रहा है, तो p ब्लॉक हो गया। अब p ब्लॉक में थर्ड शेल में देखिए 2 ऑर्बिटल हैं, 3s + 3p, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 + 1 + 10 13th ग्रुप, सेम ग्रुप हो गया। देखिए इनका और में चेक करते हैं, 3s2 3p3 सेम शेल, s में 2, इसमें 3, 2 + 3 5, 5 + 10 15, गलत हो गया, 15 और 13 सेम नहीं है। 3s2 3p5 2 + 5 7 और 10 17 हो गया।
3s2 3p6 4s2, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है, ये एस ब्लॉक का मेंबर है, फोर्थ पीरियड है इसका। एस ब्लॉक में 2 ही और ग्रुप्स होते हैं, 1 और 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 सेकंड ग्रुप। अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनका ग्रुप नंबर सेम है, फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप नंबर सेम है केवल, तो आवर आंसर विल बी ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फोर्थ अल्कली मेटल, हम सीरीज को देखकर बता सकते हैं, फोर्थ अल्कली मेटल इज रुबीडियम। थर्ड अल्केलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम। सिक्स्थ नोबल गैस रेडोन। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैंगनीज। अभी दिखाता हूँ आपको पैरियोडिक टेबल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फोर्थ अल्कली मेटल। फोर्थ अल्कली मेटल चेक करते हैं। दिस इज द अल्कली मेटल सीरीज। व्हिच इज द फोर्थ अल्कली मेटल? 1 2 3 4। दिस इज द हाइड्रोजन 1 2 3 4। फोर्थ अल्कली मेटल इज रुबीडियम। Which is the third alkaline earth metal? Third alkaline earth metal, let us check 1 2 3 calcium. Third alkaline earth metal is calcium. Sixth noble gas, let us check helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Sixth noble gas is radon. We can check fifth element of first transition series. Fifth element, first transition series is this 1 2 3 4 5. Fifth element is this manganese. So fifth element of first transition series is manganese. एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। These two groups are called as S block elements. First group is known as alkali metals. Second group is known as alkaline earth metals. यहाँ से शुरू होते हैं लिथियम से, सेकेंड ग्रुप शुरू होता है बेरिलियम से। This series from scandium to zinc, yttrium to cadmium, from here to mercury, from actinium to copernicium. These are d block elements. These are transition elements. Last electron enters into d orbital. ये transition elements होते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, ये थर्ड और ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। ये सभी p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 6 के 6 ग्रुप्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लास्ट सीरीज़ को कहा जाता है नोबल गैस, हेलोजन फैमिली। This is called as chalcogens. This is called as nicogens. This is called as carbon family. This is called as boron family. और नीचे periodic table में जो बनी होती हैं 2 extra series, they are called as F block elements. First series is called as lanthanides. Second series is called as actinides. 14 elements होते हैं। First element इसमें नहीं है, ये इसको follow कर रहे हैं, इसलिए पहले जोड़ा गया है। ये यहाँ पर है 57 एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट लैंथेनम को फॉलो करते हैं लैंथेनाइड्स, जो एलिमेंट एक्टीनियम को फॉलो करते हैं एक्टिनाइड्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।